9:30 होगा। आजा विक्की, क्या हाल है भाई? محمد وآل محمد صلوات बात का यकीनन सबूत है कि हम सब ज़हनी तौर पर अय्याम अज़ा की आमद के लिए तैयार हैं और हम अपना अपना हिस्सा इस पहले तो इस बात में। दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस काबीना को जिसके सदर जनाब साहब और सिक्योरिटी शमसी साहब हैं, उन्होंने 2 साल का टेंडर माशाल्लाह से एक दफ़ा फिर मुकम्मल कर लिया है तकरीबन। और आज ये जो इजलास बुलाया है उसका बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ मौजूद तमाम इदारों से एक तो ये पूछा जाए कि गुज़िश्ता 2 साल में क्या कुछ हमने खोया, क्या कुछ हमने पाया, कहाँ तंजीम अदा के ज़िम्मेदारान से कोई है या कहाँ तंजीम अज़ा ने अच्छे काम किए। पहली बुनियादी वजह तो ये है। दूसरी बात यह है कि हर 2 साल के बाद क्योंकि तंजीम अज़ा के इंतखाबात होते हैं तो हम गुज़िश्ता काफ़ी अर्से से यही देखते आ रहे हैं कि 2 साल की मुद्दत के बाद जनरल कौंसिल का इजलास बुलाया जाता है और उसमें तमाम मौजूद अराकीन से राय ली जाती है कि आइंदा के लाए अमल के लिए सबकी राय क्या है। आया वो नए सिलसिले से इलेक्शन चाहते हैं या इनकी कारकर्दगी से मुतमईन होते हुए इन पर एतमाद करते हुए इन्हीं को आगे के लिए चुनना चाहते हैं। तो ये फैसला करना है तमाम अरकान की मुश्तरका राय से। मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि आज के दिन सिवाय इस बात के तंजीम अज़ा की कारकर्दगी कैसे रही, अच्छी रही, बुरी रही, कैसे ज़ाती इख्तिलाफात मेरे किसी से भी हो सकते हैं। हम उस ज़ाती इख्तिलाफात को पसे पुश डाल के अज़ा के पहलू को ज़हन में रखकर कि अज़ा का तकाज़ा क्या है, दुश्मन के अज़ाइम क्या हैं और हमें क्या ऐसा अमल करना चाहिए जिससे हम मजबूत हो सकें। तो खुदारा अपनी राय देते वक्त इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा और अपनी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अगर किसी को कोई शिकायत रही है तो वो सदर और सेक्रेटरी मौजूद हैं, वो उनसे वो शिकायत भी कर सकते हैं। जी भैया, आपको ज़माने परिवार एहसास है। क्या खुशी हमारा तमाम दानिश्वर और जो भी अपनी मिसाल के साथ जिम्मेदार अपनी मिसाल के साथ जो भी
ادارے ہمارے ساتھ دیں گے. میں ان کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ مجھ سے ریکویسٹ کیا انہیں کہ پاس میں ملاقات کی اور اچھی سے گزر کر کے یا اسٹوڈنٹ ہو کے جمع ہوں اور ہم آگے کے لیے اپنے اقدامات کے لیے کام کریں. تنظیم کہ نوید بھائی نے بتایا کہ یہ بھی بنیادی ممبر ہے جب یہ فاؤنڈ ہوئی تھی. اس کے ہر 2 سال کے بعد الیکشن ہے اور میں نے اپنا ٹرین اوور پورا کیا. اصل میں جنرل باڈی اجلاس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے یہ ایک ہاؤس سے پورا اس ہاؤس کی اکثریت رائے کو اہمیت دی جاتی ہے. لامحالہ پچھلے جو ٹرین اوور گزرے ہیں اس میں بھی ہم نے ہاؤس کی بات کو رکھتے ہوئے اس کو کنٹینیو کیا تھا لیکن اس کے اوپر تھوڑا سا کچھ اعتراضات بھی تھے, کچھ کہہ رہے تھے. لیکن ایز پر کانسٹیٹیوشن جمہوری عمل کے اندر جو ہاؤس ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہاؤس جو فیصلہ کرتا ہے اور اکثریت سے کرتا ہے تو اس کو ماننا پڑتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی انلیگل یا غیر قانونی نہیں ہے اور مطلب یہ کہا کہ جی ایسا رہا ایسا نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے اکثریت رائے کے ساتھ جو اظہار ہوگا وہ تمام ہاؤس کی رضا سے کمپلیٹ ہوگا اور اسی کو اس آرا کو تسلیم کیا جائے گا. جہاں تک مرکزی تنظیمات کی کارکردگی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. ہم نے حد الامکان کیونکہ ہم سروس پرووائڈر ہیں اور ہم کیونکہ اتھارٹی نہیں ہے اپنی جو گزارشات ہیں انجمنوں کی پریشانی ہے وہ کسی بھی حوالے سے اور ادارے کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ متعلقہ رکاوٹ تک پہنچائی جائے اور کوشش کی جائے کہ اس کو حل کیا جائے. الحمدللہ 100% کوئی بھی نہیں کر پاتا ورنہ 100% کوئی کر سکتا ہے. ہم نے اپنی مثال کے حساب سے جتنا بھی کام کیا اور جو کچھ بھی کیا وہ عزاداری کے فروغ کے لیے اور آپ انشاءاللہ اور موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو اور عوامی تعاون کے ساتھ انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے. گزارش نوید بھائی نے بھی کی. حالات اور واقعات آپ کے علم میں ہیں, ہمارے ملک کے ہمارے اپنے کیا حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب مل کر یکجا ہو کر جو ہے آگے کی طرف سے قدم بڑھائیں گے. اور آپ سے بھی تعاون کی گزارش کروں گا. ہاؤس کی جو بھی رائے ہوگی مجھے اس کے اوپر 100% میں اس کے اوپر یقین بھی رکھتا ہوں اور اس کے اوپر عمل بھی کیا ہے اور اپنی کروں آئندہ بھی کرتا رہوں گا. ذاتی انار کسی سے رنجش میرے دل کی نہیں ہے. خدا میں کسی کی پرسنل کوئی ایسی بات اگر دانستہ یا نادانستہ میری وجہ سے کسی کی دل آزاری اس ہاؤس کے توسط سے میں اس بات کو یہ کہہ کے وہ مجھے درگزر کریں میں معذرت کا خاص بات ہوں اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آگے کے جو ٹرن اوور کے لیے کیونکہ ہاؤس کمپلیٹ ہے اور آپ دیکھیں کہ ہم 8 بجے سے لوگ آنے شروع ہو گئے تھے. لوگ اپنی مصروفیات جاب کر کے کوئی اپنے آفس کرتے کوئی کام کر کے یہاں پہنچ گئے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس ہاؤس کے اندر جو فیصلہ کریں تو سب کے آرائی کے ساتھ وہ کثرت آئی ہوگی تو ہمیں شروع. میں آپ سے کوشش کرتا ہوں کہ بھائی مطلب یہاں سے کیسے بھی شروع کریں یا جیسے آپ نے ٹھیک ہے. ہاں سر سیدھے ہاں سر شروع کر. ہاں بابا مطلب ایک آتا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ سے علیم بھائی نے بہت اچھا کام کرا اور علیم بھائی ماشاء اللہ سے جو ہے ہماری رائے کے جو ہمارا جو ہے بھائی آئے. اور مسئلہ یہ تھا کہ ابھی دیکھیں نا گزشتہ سالوں میں بارشوں کا مسئلہ اور بھی پرابلم تھے کہ ظاہر بات ہے کہ ادھر بارش ہو رہی ہے لائٹ نہیں ہے لیکن جو ہے نا ظاہر بات ہے کہ بندہ کیا کرے گا پانی بھرا ہوا ہے. اب علیم بھائی سے ہم ناراض ہوئے کہ علیم بھائی جو ہے اپنا بھائی پانی تو بھرا ہوا ہے سب جگہ. میں بولوں کہ علیم بھائی ہماری طرف کا ہے تو دوسری نکلتا پانی صحیح کرواؤ. تو مسئلہ یہ ہے کہ علیم بھائی کے ہم لوگ آئے 25 محرم کو جب آئے علیم بھائی یہ مسئلہ ہے لائٹ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو لیکن آپ یقین مانے بارش ہو رہی ہے لیکن یہ سائڈ میں ہر طریقے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی گلدستہ اخبار کے جلوس کے حوالے سے ہر طریقے ہمارے اس سے اور بھی یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ بھائی ادھر نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ماشاء اللہ علیم بھائی یہ اپنا شاہ حسن ڈاکٹری
एक दिन शाह से जाफरी जनरल सेक्रेटरी बात ये है कि देखो काम तो होते रहते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कोताही सबसे होती है। हमारी भी राय ये है कि अलीम भाई सदर है तो अच्छी बात है माशाल्लाह, अंदर भी इनको मौका दिया है, ये हर वक्त तैयार रहे माशाल्लाह, जब भी इनको पुकारा आधी रात को उन्होंने हमारा साथ दिया माशाल्लाह। तो हमारी यही राय है कि अलीम भाई रहे अच्छी बात है। थोड़ा जोर से बोलिएगा। तेज बोलो आवाज से। बड़ा वाक़या हुआ था, 2 साल से बंद था। इमाम बारगाह मदीना में करबला सील था। अलीम भाई ने बड़ा मेहनत किया, 2 साल में अलीम भाई ने लाख रुपये खर्च किया और लाख रुपये मदद भी की। मेरे ज़मीन बहुत हालत है, इमाम बारगाह सील था, अलीम भाई ने वकील भी अपने पैसों से किया। अभी नया ट्रांसफार्म अलीम भाई ने अभी 10-15 दिन में लगवाया हमारे मोहल्ले में इमाम बारगाह। अलीम भाई हम लोग सदर अलीम भाई ये सब बंदा होना चाहिए जो रात को 3 बजे बुलाया। हमने पूरे 2 साल अलीम भाई आए, रात को 3 बजे 2 बजे जब भी लड़ाइयों को मसला अलीम भाई और मोहम्मद हुसैन आते रहे। अलीम भाई की बड़ी मेहनत है। इमाम बारगाह की बड़ी मसले में करबला की मस्जिद इमाम बारगाह खुल गई है। अलीम भाई का बहुत बड़ा कार्रवाई है हैदराबाद के लेवल में। इमाम बारगाह सील था 2 साल से और अलीम भाई ने लाख रुपये मदद भी की, माली जानी जो भी हो बेचारे हमारी मदद की, औरत को खुश रखे। दारू भी कराएगा किसी इदारे से? इदारे में खास कर वलजा कॉलोनी और के अंजुमन सिपाही मेहदी वलजा कॉलोनी और के हम चाड़ी थी दिराबाद जनरल सेक्रेटरी। हम अलीम भाई से मुतमईन है। हमारे आजी बाजी रात को दिन को फ़ोन करते हैं, हमारे साथ होते हैं, काम करते हैं, जो भी मसले मसाइल बुलाते हैं तो रात को भी आ जाते हैं, दिन को भी आ जाते हैं। अभी उनसे मुतमईन है, अभी कोई वोट नहीं, यही रहे तो बहुत बेहतर है। मोहम्मद सलावत सैयद नसीम जाफरी दस्ता जनरल सेक्रेटरी। अलीम भाई ने जो काम किया है मुझसे महीने में बताइए कि करते रहें। भाई काम से मुतमईन है। बाकी जो अक्सरियत राय का जो फैसला होगा, इलेक्शन चाहते तो इलेक्शन के लिए उनके साथ तैयार हैं। बाकी अलीम भाई अगर कंटिन्यू होते हैं उनके साथ हैं, जो अक्सरियत राय का फैसला हम उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। माजिद हुसैन जाफरी अंजुमन गुलदस्ता अकबर का मैं सदर हूँ और ये जनरल सेक्रेटरी वसीर हैदर। बात ये है कि अगर अलीम भाई रहे जनरल सेक्रेटरी या जिस पोस्ट पे भी करें, अगर इनके वो कोरम में अंजुमनों में से किसी और की ज़रूरत है काम करने के लिए और लोग आगे बढ़ना चाहते हैं कि भाई अलीम भाई हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, किसी भी किस्म का अपनी कैबिनेट के अंदर अगर उन अंजुमनों में से इदारों में से कोई लोग अगर आगे आपका हाथ बटाना चाहते हैं तो मेरी तो ज़ाती है कोशिश ये बात है कि उनको भी आगे लाया जाए। बहुत अच्छी राय है। और बात यह है कि इसमें किसी की दिलाजारी नहीं होगी कि यार ये वही कैबिनेट चली आ रही है। बात यह है कि जो भी कोई आगे काम बढ़ के करना चाहता है 100 बिस्मिल्लाह, हमें कोई एतराज़ नहीं है किसी के भी काम पे। अलीम भाई अगर अच्छा काम कर रहा है 100 बिस्मिल्लाह, वो अपनी कैबिनेट को दूसरी तश्कील दें, जो बेहतर लोग हैं उनको आगे लाएं और काम करें। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है। हाँ भाई, क्या भाई? बस सैयद शुजात हुसैन नकवी अंजुमन जानसारा मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं अलीम भाई और शमसी भाई की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। मैं चाहता हूँ इंशाअल्लाह आगे की तरफ भी आएँ। और माजिद भाई ने जैसे बात की है, मैं ये चाहता हूँ कि कैबिनेट में कुछ नए लोगों का इजाफा किया जाए। कुछ भी हमारे लिए जो अलीम भाई बेहतर है, वो हमारा ऐसा इलाका है कच्चा, उधर भी बहुत ज़्यादा है, वरना शहर का लोग कम आते हैं। कच्चे का इलाका ऐसा रास्ता कर गए। अलीम भाई की मेहरबानी है, जिस टाइम को बुलाते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा है। ऐसे बंदे के लिए हमारा उनको बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है, उसको भी मुझे बेहतर होगा इंशाल्लाह। और भी अंजुमन बढ़ाएँ तो अच्छा है, और भी इंशाल्लाह हम सब साथ देंगे अलीम भाई को। जिस तरह अली भाई ने भी थोड़ी देर पहले बताया और बहुत सारे अच्छे काम किए। 4 ड्राइवर इन्होंने गुजारे 8 साल का अर्सा, और सब उनकी कारकर्दगी से उठ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि परवरदिगार ने वो मजबूरी से ड्यूटी
سب کا رائٹ ہے, جس طرح ماجد بھائی نے بتایا اور اللہ بھائی نے بھی, کہ سب کا رائٹ ہے کہ سب کا حق بھی ہے آزادی رائے کا بھی اور اپنی اختلاف رائے کا, اور باقی لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے. ابھی الیکشن کی جب اچانک بات ہے تو یہ جنرل باڈی کا اجلاس ہوگا الیکشن کے حوالے سے. الیکشن ہونا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ کسی بھی انجمن کو, کسی بھی ادارے کو آبجیکشن ریز کرنے کا موقع نہ ملے, کیونکہ 2 سال ہم نے ساتھ چل رہے ہیں, ہم سب ایک ہیں, ہم سب ساتھ ہیں نا, ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ ابھی میں کہتا ہوں جی میں 2 لوگ یہاں موجود ہیں, میں کہتا ہوں کس کے حق میں ہاتھ کھڑا کرنا ہے. اب دونوں میرے دوست ہیں, دونوں میرے بھائی ہیں, دونوں میرے اپنے ہیں, دونوں سے میں محبت کرتا ہوں, وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, لیکن میں ایک کے حق میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو دوسرا اگلے 2 سال کے لیے مجھ سے یہی کہے گا کہ یار دیکھو آپ کی وجہ سے آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا. تو الیکشن کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پراپر الیکشن کرایا جائے, الیکشن کمیشن بنایا جائے. علیم بھائی کی کارکردگی سے سب مطمئن ہیں تو ڈیفینیٹلی سب ووٹ ان کو دیں گے. اگر کسی اور بھائی کی کارکردگی سے مطمئن ہے, اس کو لانا چاہتے تو وہ اس کو لے کر آئیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ آزادی بھی ہوگی اور آسانی کے ساتھ ہم سلیکشن بھی کر سکتے ہیں. سلیکشن کو خیر اس کو نہیں کہہ سکتے, سلیکشن کا لفظ تو غلط ہو جائے گا. سلیکشن ہوگا تو اچھے طریقے سے اس کو ہم آگے لا سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ فلاں شخص آگے آئے, فلاں شخص آگے آئے, فلاں شخص آگے آئے, اس کو لانے کا موقع مل سکتا ہے. تو اس لیے میں اس حق میں ہوں کہ الیکشن کرایا جائے, اور پراپر الیکشن کرایا جائے جس میں باقاعدہ الیکشن کمیشن بنایا جائے, اور سب کو جس کو آگے آنا ہے, جس کو الیکشن میں حصہ لینا ہے, اس کو بھرپور موقع دیا جائے, تاکہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی انجمن, کوئی بھی ادارہ جو آبجیکشن بعد میں نہ کرے کہ دیکھیں جی الیکشن ہونا چاہیے تھا, ہم تو آگے آنا چاہ رہے تھے بٹ ہمیں موقع نہیں دیا گیا. تو علیم بھائی کی اچھی کارکردگی ہے تو ڈیفینیٹلی علیم بھائی بھی کریں گے, کسی اور کو اگر لانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کریں گے. تو میری یہ رائے ہے کہ الیکشن بہت ضروری ہے, الیکشن ہونا چاہیے. میں سید محمد حسین جعفری, جنرل سیکرٹری انجمن طالب علم. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا مرکزی تنظیم اعضاء کے صدر سید علیم حیدر تقوی صاحب کو, اور ساتھ ہی مرکزی تنظیم اعضاء کے جنرل سیکرٹری شمس الحسن زیدی کو, کہ آج یہ تمام ادارے ایک خوبصورت گلدستے کی شکل میں یہاں موجود ہیں. تو یہ ان کی کارکردگی کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے. جتنے بھی مرکزی تنظیم اعضاء کے تحت اجلاس ہوئے ہیں اس میں تمام ادارے بھرپور شرکت کرتے ہیں. ان کی جو کارکردگی ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے, سب کے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں ہی جو صدر اور جنرل سیکرٹری یہ جو جوڑی ہے, یہ یقین کریں میرے 15 سال ہو گئے اس انجمن میں خدمت کرتے ہوئے, لیکن اس خوبصورت جوڑی کو مثال اپنی آپ ہے, جو اپنی جیب سے خرچ کر کے بھی تمام انجمنوں کے یا دیگر معاملات جو بھی ہیں, یا ہمارے بچوں کا جلوس نکلتا ہے اس کے معاملات ہیں, آگے بڑھ کر شانہ بشانہ تنظیم اعضاء کے لیے خدمات دیتے رہتے ہیں. تو میری یہ رائے ہے کہ انہی کو کنٹینیو کیا جائے. باقی جیسا ماجد بھائی نے کہا اس سے میں ایگری کروں گا کہ دیگر جو عہدے داران ہیں اس کے اندر لازمی بات ہے اس کو چینج کیا جائے, اس میں نئے لوگوں کو شامل کیا جائے. باقی یہ کہ صدر اور سیکرٹری بہت بہترین ہے, میری دعا بھی ہے اور میری اپنی یہ رائے ہے کہ یہی کنٹینیو کریں اور اسی طریقے سے بڑھ چڑھ کر اعضاء کا کام چلتا رہے. السلام علیکم. ہمارے انجمن ادا کریں گے جنرل سیکرٹری. میں علیم بھائی 2 سال سے ہمارے ادھر پانی بھر رہا تھا, بارش ہو رہی تھی تقریباً, تو علیم بھائی نے بڑی ہمارے ساتھ محنت کری, ادھر شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے, پانی جو ہے جلوس کا کام کروایا نا, تو ہم تو علیم بھائی کی حمایت کرتے بھرپور نا, علیم بھائی کو آنا چاہیے. بہت شکریہ. انجمن ہزارہ میں انجمن ہزارہ کا نیا صدر علیم بھائی کو شکتی بھائی کو اور تمام عہدیداران جو یہاں تشریف رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو بھائی میری گزارش ہے آپ لوگوں سے یہ ہے, علیم بھائی سے بھی, کہ ایک گروپ تشکیل دیا جائے واٹس ایپ کے اوپر, تو جتنے بھی عہدیدار ہیں, تاکہ اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تاکہ ہم لوگ بر وقت اس کو مطلب وہاں پہنچ سکیں, ریسکیو کر سکیں. باقی یہ جو کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ بھائی نئے چہرے آنے چاہیے یا کچھ آنے چاہیے, اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہمیں علیم بھائی پہ ٹرسٹ ہے تو ہمیں ان کے کابینہ پہ بھی ٹرسٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, لازمی بات ہے وہ کوئی ایسی باہر کے آدمی کو تو لانے سے رہے یا کسی اور کو بھی, وہ صدر ہیں یا جو بھی ہیں, جو کہ ان کے اپنا اختیار ہے کہ بھائی وہ کسی کو بھی سلیکٹ کریں. باقی اگر کوئی کسی کو آبجیکشن ہے تو وہ ان سے الگ سے بھی وہ گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ یہ نام کر دیں, یا ان کو اپنے ریٹرن میں لکھ کے دیں. باقی جو اختلافات ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے, اور ایک ایسا کمیونیکیشن ہونی چاہیے سارے انجمنوں میں, تاکہ کوئی بھی پرابلم ہو تو ہم اس کو ہر وقت ریسکیو کر سکیں. باقی ہمیں ہماری طرف سے علیم بھائی کے اوپر 100% ٹرسٹ ہے. کوئی ایسی شمسی بھائی کے اوپر بھی جو بھی انشاءاللہ جو بھی بہتر ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے.
एक दफ़ा फिर तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। ये जो इस वक्त सबसे राय ली जा रही है वो ये ली जा रही है कि 2 साल की कारकर्दगी के बाद क्या अलीम हैदर तक़वी और शमसुल हसन शमसी इस काबिल हैं कि उन्हें अगले 2 साल के लिए चुना जा सके। एक तो ये बात। दूसरा ये कि अगर किसी को कोई शिकायत है तंजीम अज़ा के अहदेदारों से तो वो अपनी शिकायत भी रजिस्टर करा सकते हैं कि भाई हमें आपसे ये शिकायत रही है और ये मामला रहा है। अब तक तकरीबन 10 या 11 इदारों ने अपनी राय दे दी है। मेरा ताल्लुक़ अली अकबर खंदक कमेटी से, मैं उसका चेयरमैन हूँ। मेरी राय 100% माजिद जाफरी के साथ है कि जो खुद से ख्वाहिश रखते हैं उनको ज़रूर मौका दिया जाए इस काबीना में हिस्सा डालने के लिए। नो डाउट जैसे सबने कहा कि अली भाई और शमसी ने बहुत जिम्मेदारी से और इंतहाई जिसे कहना चाहिए खुलूस दिल के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, लेकिन बकौल माजिद के कि कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें काम का मौका मिले और वो भी कोई तजर्बा हासिल करें, तो मेरी नज़र में इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अमल होगा कि जो खुद से कहे कि अली भाई मैं आपके साथ शाना बशाना काम करना चाहता हूँ तो सबसे पहले उसको मौका दीजिए। तो मेरी राय यही है इस बारे में। अब बाकी साथी अपनी अपनी राय दें। हमारा हर वक्त लेकिन अली भाई ने कहा काबीना में लोग आने चाहिए, वो इसलिए आने चाहिए कि काबीना के अंदर नए लोगों का आना जरूरी है। कल को तजर्बा हासिल होगा, आने वाले फ्यूचर में तंजीम अज़ा के अलीम भाई शमसी भाई तायात तकरीब नुमाइंदे नहीं हैं, आप तकरीब रह सकते हैं के बाद। तो जो लोग साथ चलेंगे वो आगे काम करेंगे, उनको पता चलेगा कि वो इंतजामिया से किस तरह बात करनी है, DSP से, SP से, IG से किस तरह मिलना है। हमारे लोगों को पता ही नहीं है, अलीम भाई अपने साथ जाते हैं, किसी को साथ लेके जाए, नए लोगों को साथ लेके चलेंगे तो आने वाले फ्यूचर में वो तैयार होंगे मुस्तक़बिल में। बहुत अच्छी बातें हैं, इस समय हम मिलेंगे यहाँ तो माशाल्लाह अच्छा भी लग रहा है कि सारे लोग जमा हैं और किसी भी कारकर्दगी देखी जाए तो उससे ये अंदाज़ा लगा लिया जा रहा है कि उसके राब्ते लोगों से किस तरह है। तो माशाल्लाह जो है वो कारकर्दगी हमें मज़ा ये है कि जो पिछला हमारे जो काम करने वाले हजरात हैं उनके अंजुमन से इदारों से राब्ते ऐसे हैं कि उनके लिए कॉल पर लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं। बरं बहुत सारे लोग हैं, 2 मिनट की जमा दूँगा। हमारे ऊपर हालात बड़े कशीदा हैं, हमारे ऊपर चारों तरफ से आजकल चलता है, तो हमें अपने आप को बहुत पुस्तकम करना है। अगर हम पुस्तकम नहीं हुए आपस में जो है वो मजबूत नहीं हुए तो आगे हमारी जो है ना वो जो हमारी जो मंजिल है, हमारी असरदारी जो है, हमारा जो हर किस्म का जो है काम है वो बड़ा मुतासिर होगा, बल्कि हो रहा है। यही वजह है कि हम मजबूत नहीं हैं, मुस्तहकम नहीं हैं, हम एक दूसरे से राब्ते में नहीं हैं, हम एक दूसरे के मतलब के पीछे लगे हुए काम करने से। अली भाई और शमसी भाई को जब भी मैंने किसी जगह देखा है तो हमको काम के लिए बुलाया है, हाजिर हुए हैं, देखा है। कल के मैंने बहुत सी जगह, हर जगह उनको देखा है, हर मकाम पे जब जहाँ पर प्रॉब्लम हुई है वहाँ पर उनको देखा है। जिसमें लोग काम करना चाहते हैं बिल्कुल आए, करना चाहिए, उनका भी हक है, साथ रहें, तरबियत कराएँ, सीखें काम, फिर आगे से जो है वो काम करें। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि सबसे पहले खुशी की बात ये है कि आज बकरीद तर्जुमा जो इजलास हो रहा है, 3:30 तक की मीटिंग को शायद हमें मौजूद नहीं किया गया था, ठीक है, और इसमें जो मौजूद किया गया आपका शुक्रगुजार है और सब दोस्तों में यहाँ पे बैठे बड़ी खुशी की बात है कि आप सब यहाँ मौजूद हैं और हज़ार सैकड़ों के साथ बैठे। मेरी गुजारिश ये है कि माशाल्लाह आप लोगों ने 8 साल का रिटर्न काम किया है, काफ़ी 27 है और माजिद भाई की जो राय है ये भी बहुत अच्छी राय है, लेकिन
हमारी अंजुमन की तरफ से बायसी सदर और किसी को मशवरा करेगा, मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन कराया जाए, प्रॉपर इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, और आपने जितने भी इदारे यहाँ पे रखे हैं उन सबका तारुफ पहले आपको मीटिंग शुरू करने से करा देते। अच्छी बात है, खैर वली भाई से मिल गया कि तारुफ भी कराना चाहिए कि कितने नए इदारे आपके पास इदारे आए हैं, अंजुमनें आई हैं, उनका भी शामिल यार इलेक्शन कराया जाए। واتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون بلند الصلوات. جناب صاحب کا سر کیسے ابھی تو مجھے ہاں تنظیم اعظم صاحب کا تمام کارکنوں علی بھائی کو اور آپ تمام ممبران کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ عزیزان من، 3-4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر شعبے کے لازمی ہوتی ہیں۔ اقتصادی طور پر مثبت بندہ ہو، سماجی طور پر مثبت بندہ ہو، اور معاشرتی طور پر اس کا رابطے بہتر ہو۔ کسی بھی کام کرنے کے لیے 3-4 چیزیں ہونا اس بندے کے لیے لازمی ہے۔ جو ماجد بھائی کی رائے میں نے سنی ہے کہ دوسروں کو موقع دیا جائے، بلکہ یہ تو پلیٹ فارم ایسا ہے، ہر بندے کو موقع دینا چاہیے تاکہ وہ بندہ سیکھے، اور عمل سیکھنے کا ہی ہے، لیکن اہلیت لازمی ہونی چاہیے۔ اہلیت کے بغیر، کیونکہ در اہل بیت علیہ السلام ہے ہی اہلیت والا۔ یہ تو نقصان ہوا معاشرے کے اندر کہ جب ہم اہل کی جگہ نااہل بٹھائے تھے تو کام نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا، شروع سے نہیں ہوتا آ رہا۔ تو بس یہاں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، میں انجمن علماء معصومین کا ابھی صدر منتخب ہوا ہوں، اور میرے ساتھ جنرل سیکریٹری جناب عرفان ہاشمی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ یہ 2-4 چیزیں، اور بھائی کی رائے کو میں لوں گا کہ الیکشن ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، لیکن کچھ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اس کے ماتحت ہونے چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے بندہ وہ آگے آ گئے، نہیں، یہ ادارہ ہے۔ تنظیم اعضاء میں اس کو ایسے لیتا ہوں کہ جسم کے 2 حصے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم ہمارا دنیاوی ہے اور روح ہمارا اسپرچل ہے۔ تو تنظیم اعضاء ہماری روح ہے، روح خالصاً اہل بیت علیہ السلام کے لیے کام کرتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے دل، ہمارا جو محبت ہے اور الفت ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر تنظیم اعضاء مضبوط ہوگی، ہمارے جو کام ہے، جتنے بھی حیدرآباد کے کام ہیں، لدھیاباد کام ہیں، وہ یہی کرواتے ہیں۔ اگر ہماری اتنی بساط نہیں کہ ہم جا کے خود مل لیں، یا پاور ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم ایک ادارہ میں جو ہمارا ہے اس کو مضبوط کریں۔ ایک جو معاشرے کے اندر سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ ہم ادارہ بنا تو لیتے ہیں لیکن ادارے کو مضبوط نہیں کرتے۔ تو میری یہ رائے ہے آپ دوستوں سے کہ جب ہم تنظیم اعضاء کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے سلیکشن کے لیے یا الیکشن کے لیے، تو جب ہم متفق ہو جائیں ایک ہی نام کے اوپر، تو پھر ہم بھرپور اس کو مضبوط کریں، اس کو ساتھ دیں، جانی مالی قولی جیسا بھی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں تینوں کی تینوں ہیلپ قابل قبول ہیں، ایک بھی کم نہیں ہے۔ تو میری یہ رائے ہے کہ تنظیم اعضاء جو اس ٹائم علیم بھائی موجود ہیں، اگر اپوزٹ میں کوئی سامنے نہیں آیا، اور انہیں ایسا ہو کے کام کرتے ہوئے الحمدللہ، اگر کوئی نہیں آیا، اگر آنا چاہتا ہے تو وہ بھی بتا دیں، نہیں تو علیم بھائی اور شمسی بھائی اس ٹائم بہترین کام کر رہے ہیں۔ یہ میری رائے ہے، یہ رائے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سابقہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بہت سارے علاقوں کے اندر جو لائٹنگ کا مسئلہ تھا وہ حل کروایا گیا، نئے ٹرانسفارمر لگائے گئے، جو مجھے معلومات ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کی لازمی ہوتی ہے تاکہ ہمارا جو ادارے ہیں وہ ہماری بات کو سنیں۔ تو ایسے بندے کا ہونا لازمی ہے سامنے جو فرنٹ لائن پہ کام کر سکے۔ اگر جو بھی دوست آنا چاہے، لیکن ان کے ساتھ یہ 4-5 چیزیں ہونا لازمی ہے۔ اگر میری بات کسی کو بری لگی ہوتی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے اور سنجیو نے اچھا کام کیا، الیکشن ہونے چاہیے، نئے بندے آنے چاہیے، کچھ نئے ناراض وہ بھی اچھا ہے کہ ایک جیسے ہو جائیں گے الیکشن میں، ہم لوگ جو آپس میں پوری ہے وہ بھی ایک جیسی ہو جائے گی۔ یہ تقریباً ہر بندہ چاہ رہا ہے الیکشن ہو تو اچھا الیکشن ہو جائے، بہتر ہمارے لیے، اس میں سب کی بڑائی ہے جو یہاں پہ حالات ہو جائے گا۔ میرا نام عمران ہے، تو علیم بھائی سے میں بالکل، اور ہمارے جو بھی کام ہیں وہ تو علیم بھائی کراتے رہتے ہیں۔ باقی دوست نئے آنا چاہ رہے ہیں تو یہ پہلے بھی کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں کام،
करते तो आए, हमारे से किसी ने पहले तो कभी भी रब्ता नहीं किया है। ये अली भाई करते रहते हैं, ये उनको तो पहले भी करना ही चाहिए था ना काम। तो अभी इलेक्शन का है, अली भाई के साथ आएँ, बैठे, काम करें और सीखें, यही है वैसे तो जनरल सेक्रेटरी मैंने चाहता हूँ अली मैदर तक की साथ पे हमारा एतमाद का वक्त तो वही है। और हम ये कहते हैं कि जो यहाँ पे तजवीज़ दी गई कि जो काबीना सीखना चाहिए, असल में क्या होता है कि जो मैं एक एग्जांपल दूँ कि जो ट्रेन होती है ना, उसमें जो पीछे बोगियाँ होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बोगी वो जो आगे चलने वाली है उसके साथ दौड़ पाए, क्योंकि ख़ुद का भी टैलेंट होना चाहिए और ख़ुद को भी काम करने की हिम्मत और जस्तजू होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अली मैदर जो है ना, वो अली मैदर साहब जो है ना तंजीम के सदर हैं, तो उन पे वाजिब हो गया कि अब वो हर इदारे के पास पर्सनली पहुँचे। अगर मैं जनरल सेक्रेटरी कहता हूँ खुद को एक इदारे का, तो मेरी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं कि मैं ख़ुद भी कुछ काम करूँ। तो मेरे हिसाब से जो भी इनसे सीखना चाहता है वो ख़ुद वॉलंटरली सामने आ जाए कि भाई मैं ख़ुद काम करना चाह रहा हूँ। बाकी रही बात जो इलेक्शन वाली तजवीज़, तो एक अच्छी बात है कि एक प्रोसेस होना चाहिए, मगर अलमिया हमारे पास ये है कि जो है ना बिल्कुल अयाम-ए-अज़ा जब सर पर होते हैं तो फिर आकर इलेक्शन होता है। फिर क्या होता है, जब तक इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो तब तक इदारे अपनी मीटिंगें बुलाना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा इस प्रोसेस के लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये शाबान तक या जो है ना, क्योंकि जनरल बॉडी है, इसमें ये सारे मामला डिस्कस होने चाहिए, क्योंकि जनरल बॉडी में ये तय होना चाहिए। कोई भी रदल बदल अगर आइन में होती है तो जनरल बॉडी होती है, इसलिए अपनी जो है ना एक छोटी सी जो है ना ये भी तजवीज़ कि शाबान में या माह रमज़ान के बाद फ़ौरन शवाल में करनी चाहिए, ताकि टाइम हमारे पास जो है ना बच सके। शुक्रिया। जैसे सारे भाइयों ने बताया कि काम करता है, और हमने देखा भी काम करता है, आए और अच्छा काम किया हर तरीके से हमारे पास भी। और जैसे अकबर भाई ने और नवीद साहब ने और राशिद भाई ने भी बात की कि अगर कोई दूसरे लोग आना चाहते हैं तो उनको भी मौका दिया जाए, उनका भी टैलेंट चेक किया जाए। मेरी भी राय यही हम जनाब अली मैदर साहब और सबसे की तजुर्बा कारकर्दगी से मुतमईन हैं, और अगर कोई नया बंदा आगे से काम सीखना चाहता है, पोस्ट नई जनरेट कर लें, कोई भी क्रिएट कर लें पोस्ट, वो इनके साथ रहे और काम सीखे। तंजीम अज़ा में नई पोस्ट कोई क्रिएट कर ले और इनके साथ काम करे और काम सीखे, ताकि हमारे पास और अफरादी कुव्वत बढ़ जाए। सैयद निशान अहमद अली अंजुमन खाना का सदर, और माशाल्लाह मेरा हालिम भाई और शमसी भाई के हमदर और चीज़ें वो नजर आ रही है, मेहनत है। लेकिन ये ऐसे कुछ खामियाँ हमारे साथ मुंसलिक ले रहे हैं, जहाँ हमारा दिल मुश्किल करता है, तो रोड नहीं हो सका था, कुछ ना कुछ परेशानियों की। एक बार हम लोगों ने पर्सनली मामला किए, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, तो उसमें ओवरऑल हैसियत स्काउट भी सारे इदारों से मामला और चीज़ें हैं, तो इस वक्त ज़रूरी है कि इलेक्शन होने चाहिए। मैं चाहता हूँ शमसी हुसैन शमसी साहब और अली मैदर साहब कंटिन्यू करें, 2-3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल यही रहें, मेरी तो यही ख्वाहिश है। बाकी आप लोगों का सुन लिया है, तकरीबन 5 साल इदारे हैं जो नहीं है, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि भाई यही रहें। अभी और बाकी और भी इदारे बाकी हैं, उनसे भी राय पता लग जाएगी ये क्या है। वस्सलाम। जैसा पिछले साल की तरह सफर मीटिंग हुई है, तो हमारी राय यही है कि पिछले से साल अच्छा काम होता रहा है, पिछले 7-8 सालों से अच्छा काम हुआ, तो शमसी भाई और अली भाई को होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर कोई आना चाहता है तो
बिल्कुल आए, इनके साथ आए, बढ़ के काम करें, साथ में इसलिए काम करें, जितना ज़्यादा मुत्तहिद होकर काम करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो बहरहाल बेहतर यही है कि इनको ये वगैरह संभालें, क्योंकि सीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ इधर, जो भी काम होते थे काम के, और महबूब को बोलता था तो काम होते थे हमारे। फर्स्ट टाइम मैं इधर आया हूँ। अभी बोल रहे हैं यार इलेक्शन के लिए किसी को खड़ा तो करो, कोई आया तो अगर भाई इलेक्शन कराओगे तो वो खड़ा होगा ना सामने वाला। सब राय ये 7 साल पहले यानी कि 8 साल पहले आफ्ताब जाफरी को 7 साल तक सदर बना के रखा। कब तक ये रिवायत काम रहेगी भाई? इलेक्शन कराओ ना 8-2 साल के बाद, क्यों नहीं करा दो? ये राय क्या है? अभी ये बताओ मुझे, ये लेटर जो चला है ये किस लिए चला? क्या चला? राय के लिए चला है? ये राय के लिए नहीं चला भाई, इलेक्शन के लिए चला। 2 साल की कारकर्दगी और इलेक्शन का नाम यूज करो, या फिर बोलो सिलेक्शन, या तो सिलेक्शन लिखो इसके ऊपर, लेटर के ऊपर, इलेक्शन नहीं लिखो भाई। सिंपल सी बात है, सच बात करूँ, अलीम भाई के साथ हूँ, हमेशा रहा हूँ। अलीम भाई बहुत अच्छा काम करते हैं। देखो मैं अंजुमन पाया में करबला सैयद अकबर रिजवी सब जानते हैं मेरा नाम, सही है, क्योंकि नौखानी के हिसाब से मुझे सब जानते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अलीम भाई का साथ दिया, 8 साल का साथ दिया। क्यों दिया था? आफ्ताब जाफरी को क्यों हटाया था यार? सब एक ही नहीं हो रहे थे, अभी भी वही चक्कर चला हुआ है, सब एक ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहा है यार? यहाँ पर हम हर एक अपना इज़हार राय का इख्तियार रखता है। मैं किसी पर जो है ना ताले नहीं लगा सकता कि आप ये इस राय का इज़हार ना करो। बात ये है कि हम यहाँ जो बैठे हैं हर एक अपनी अपनी सजेशन देने आया है, ना कि यानी किसी के सजेशन पर हर एक को इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये ना करें कि जनाब अली ये ना बोलें, यानी कह देना आसान है कि जनाब अली फलाने भी आ जाए, लेकिन कारकर्दगी दिखाना बड़ा मुश्किल है। शुक्रिया। कुछ राय, ज़्यादातर राय तो यही आए कि साहब सिलेक्शन या जो भी बैठे 2 सालों में होता रहा है वही हो जाए। इलेक्शन भी होना चाहिए, इससे भी कोई वो नहीं है बात कि इलेक्शन ना हो, मगर इलेक्शन का एक तो पहले टाइम फ्रेम तय होना चाहिए। ये यानी हर 2 साल बाद कि शाबान के महीने में होगा, रमज़ान के या ईद के महीने में। ये अभी क्योंकि अब अयान है बिल्कुल नज़दीक है, और अभी 15 दिन बाद 10 दिन बाद बकरीद है, उसके बाद फिर फ़ौरन अयाम ऐसा है, ठीक है ना। मेरी राय ये है कि तकरीबन सबने राय जो अभी दी है वो यही दिए कि अली महदूद भाई और शमसी भाई ये बेस्ट हैं, तो आइंदा 2 साल के लिए इन्हीं को नॉमिनेट किया जाए। फिर इसके साथ एक साथ में एक ये भी तय किया जाए कि इलेक्शन का जो मंथ है वो तय किया जाए कि भाई ये रमज़ान में या बकरीद में या जो जब भी वो होते हैं एक दफ़ा वो तय हो जाए, उसमें भी इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन से कोई इनकारी नहीं है, इलेक्शन कभी वो नहीं है। तो मेरा जहाँ तक वो है कि तकरीबन इस वक्त हाउस में जो है वो अभी तकरीबन समझे कि 80% जो है वो राय यही की है कि अली महदूद भाई और शमसी भाई बेस्ट है, तो लिहाजा इन्हीं को कंटिन्यू किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अनवर अली, उन्होंने गुलाम अली अब्बास सदर, और हमने तो फिलहाल इन्हीं को ही देखा है, तो हम तो इन्हीं की सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर जैसे भाई ने बोला है, अगर इलेक्शन होता है कोई दूसरा बंदा सामने आता है तो इंशाल्लाह देखेंगे, अगर वो अच्छा बंदा है तो उसकी सपोर्ट करेंगे और उसी को वोट देंगे और उसी को आगे लाएंगे। फिलहाल तो यही शख्सियात हैं जो आते हैं, हमसे रब्ता भी रखते हैं, हमारा काम भी आता है, तो फिलहाल तो हम इन्हीं की सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। कोई और बचा है क्या? सदर है काफ़ी सालों से काम कर रही है, लेकिन हमारे पास इसी दौरान आइए हमारे सपोर्ट भी करते हैं। हमारी राय ये होती है भाई कर सकते कि कंपनी ऐसा की तरफ से कोई दूसरा आएगा ये अलीम भाई जो है
जिससे भी हमारे के लिए बेहतर माशाल्लाह अच्छे लगेंगे, हमारे दुख सुख में काम आने वाले हैं। मोहर्रम में भी हमारे पास 7 मोहर्रम को ये आए थे, जिससे वो खुद लेके आए थे। अभी ये यहाँ पे बोल रहे थे भाई किसी के पास पानी का मसला होता है मोहर्रम में, किसी के पास क्या होता है, लेकिन हमारे पास ये शख्सियत खुद जिससे को लेके आई थी लाइट रोड की वजह से। कि शहरों में जो काफिला निकलता है हर किसी का काफिला अलग तरीके से होता है। हमारा जो कच्चे का काफिला होता है वो बहुत सारे बंदों ने देखा है, किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा, इन्होंने देखा। हम तो इनको चाहेंगे भाई जब तक है तब तक हम इनके साथ होंगे, अगर दूसरा कोई नया आया तो हम इंशाल्लाह उसके साथ खड़े रहेंगे। तो काइंडली वो सबसे पहले आगे आ जाए कि हमारा जो भी उनका राय है वो अपनी राय दे दें, वरना फिर मैं अलीम। अच्छा एक तो अभी बाकी है भाई, जाफर भाई बाकी, इनका भी इरादा है, ये भी बाकी है, इनकी भी राय होनी चाहिए। एक तो मेरे ही दिमाग में आ गया था कमेटी प्रतिवाद की बार आ चुकी है। मेरा मुस्तकिल बोर्ड जो है वो अभी शमसी भाई और अली भाई के हक में ही है। आने वाले जो भी हैं अगर पैनल तश्कील देना चाहते हैं, देखिए यहाँ जो भी कोई फैसला हुआ है वो इजहार राय पे हुआ है, किसी की तनकीद पे नहीं हुआ। राय पर तनकीद करना किसी का कोई हक नहीं है, हर शख्स की अपनी राय है। राय को कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद फैसला होगा और इसके इलेक्शन पे जाना है या रेफरेंडम पे जाना है, सिलेक्शन पे जाना है। अस्सलाम वालेकुम। अब तक के तंजीम अदा के सदर मोहतरम सैयद अली हैदर तत्वी साहब से कि वो अपनी राय का इज़हार। तमाम इदारों का, अंजुमनों का इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया और मुझ पर एतमाद किया। साथियों और दोस्तों, बहुत से लोग नए हैं और बहुत से लोग अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, जज्बात में आकर अंजुमन को, मोमिनीन को मुनाफिक कहना ये गैर पार्लिमानी और गैर मजलिसी लफ्ज़ है। आपने वादा किया बहुत जज्बात के अंदर, और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जनरल बॉडी इजलास उसकी अहमियत का आपको अंदाज़ा है। मैं आपसे अभी कहता हूं, मुझे इलेक्शन से कोई इनकार नहीं है, पूरा हाउस मौजूद है, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। चलें, अगर कोई तैयार है तो आदमी कोई अपने नॉमिनेट करें, अभी इलेक्शन यही इस हाउस के अंदर करा लें। इसी वक्त टाइम की, वक्त की ज़रूरत नहीं है, सारे इदारे यहाँ मौजूद हैं। अक्सरियत राय से कोई सदर जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़ा होना चाहे बिल्कुल हो। अली भाई अच्छा, दूसरी अर्ज ये है मेरी कि हमारे माजिद भाई ने तजवीज़ दी, मैंने कभी भी इनकार नहीं किया, और हर साल जो है वो कैबिनेट बनाई। हर तमाम अंजुमन मौजूद है, उनके जिम्मेदारान भी मौजूद हैं, उनकी पूरी कैबिनेट होती है। मैं उनसे सवाल करता हूं कि कौन लोग काम करते हैं, क्या पूरी टीम काम करती है या सदर जनरल सेक्रेटरी या मखसूस लोग काम करते हैं। आज ये एतराज़ करने के लिए कि जी वो आपने ये नहीं किया, आपने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन क्या होती है कि हम अपनी कैबिनेट में ऐलान करके और आपसे तौसीक कराते हैं, ये होती है सिलेक्शन। कि हम कैबिनेट मीटिंग करते, अपनी कैबिनेट बुला के भाई आइंदा साल के लिए इनको हमने किया, जैसे होता है जमहूरी अमल के अंदर, आप रोज सुनते रहते हैं। लेकिन मैंने पूरा हाउस बुलाया है, पूरे हाउस की राय लिए, ये सारे अंजुमनों के जिम्मेदार मौजूद हैं। अंदर वहाँ जाके कोई जो पेपर में पढ़े ना, या खुदा ना खास्ता कोई कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे की कोई बात नहीं है, यहाँ कोई किसी के पीछे पैसे या दौलत या कुछ लगा हुआ। लेकिन कुछ भी बात करें अपनी हिम्मत के साथ करें और उसको दलाइल के साथ पेश करें। इलेक्शन ये जो मौजूद है, इन लोगों का कहना क्या ये इलेक्शन नहीं है? मैं सवाल करता हूँ आपसे, आप मुझे बताइए, इतने लोगों की राय आई है, इतने लोगों ने यहाँ बात की है कि या इलेक्शन वही होगा कि जी वहाँ से अंदर में आऊँ, आके पेपर डालूँ और यहाँ हो जाएगा। इन्होंने खुले आम का, मैंने नहीं कहा किसी को हाथ उठाइए, हाथ उठा के भी इलेक्शन होता है, शो इवेंट का इलेक्शन होता है भाई, जमहूरी अमल का हिस्सा ही है। इस हाउस को आपने एक बिल्कुल रद्दी की टोकरी समझ लिया कि आप इसके ऊपर जाओ।
आप इसके ऊपर आइंदा नहीं बुलाएंगे, इलेक्शन की डेट दे देंगे, बस इसको खड़ा होना है, आ जाइए इलेक्शन कर लीजिए। हाउस को बुलाने का मकसद है हमारी कोई कोताही है, हमसे कोई किसी की नाराजगी है, हमने कोशिश की। ये एक जिम्मेदारी है, एक ड्यूटी है, और इस ड्यूटी को बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अमानत समझ के मैं अंजाम देता हूँ, और उसी को मैं मद्देनजर रखता हूँ। और उसकी मतलब मिसाल ये मौजूद है कि मैंने अपनी दानिश में, मुझे नहीं पता कि ये जो मैंने दौर गुजारा है किस तरीके से गुजारा, लोगों की मोहब्बत रही, शफकत रही, यहाँ तक आ गया लेटर के लिए हमारे पास नहीं आया कोई लेटर लेके, हमारा ताल्लुक नहीं है आपसे, फिर भी हम लेटर देने के जाते रहे। ये हमारे अली भाई मौजूद है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब ये जनरल बॉडी इजलास होगा उसके अंदर बहुत सारी बातें हो जाएंगी, उस वक्त क्यों इनकार करते हो भाई, उस वक्त क्या कहते हो भाई। और फिर बहुत सी अंजुमनों के अंदर फिर आपको बताऊं मैं, हर एक का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक का अपना अपनी राय है। बहुत सी अंजुमनों के अंदर सिर्फ सिलेक्शन होती है कि भाई हमारा ये सदर है, हमारी ये जनरल सेक्रेटरी है। कितनी अंजुमनों के अंदर इलेक्शन होता है मुझे बताइए। मैं एक सवाल कर रहा हूँ जनरल, मैं तो हाउस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पूछें, आपने राय ली, मैंने तो किसी को पहले नहीं की तकलीफ की, मैंने हाउस पे छोड़ा, मेरा टाइम पूरा हो गया। लेकिन इस तरीके से बात करना कि हम कोई मुसल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ना, ये मेरी ज़ाती जागीर है, ये एक अमानत है। जो साथी जो दोस्त मेरे साथ मिलकर, क्योंकि इतनी हाउस की राय यहाँ आ चुकी है और सब ने राय दी है, मैं सबका एहतराम करता हूँ बिल्कुल इलेक्शन। लेकिन इससे डिनाई ना करें कि ये हाउस जो है ये जनरल बॉडी इजलास है, इसके अंदर हर चीज़ रद्द होती है, हर चीज़ कबूल होती है, इसको समझना चाहिए। क्योंकि अपने अंचलों भी इलेक्शन नहीं कराते हैं, उनको नहीं पता कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं ये जिक्र नहीं करना चाहता कि क्या हो और क्या नहीं हो, लेकिन आप इसको समझें कि जनरल बॉडी इजलास का मकसद क्या होता है। हमने उस पर हमने काम पूरा किया। तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ जो नाराज़ थे, जो भाई मेरे साथ इन्होंने मुझ पर एतमाद किया। अब हाउस का फैसला, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो हमारी सुप्रीम काउंसिल के अरकान जनाब हसन हाफिज साहब, सोहेल भाई हमारे यहाँ तशरीफ रखते हैं, जफर हाफिज साहब यहाँ मौजूद हैं, ये अनाउंस ये करेंगे। मुझ पर भी एक सुप्रीम काउंसिल है, अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो ये इनको इख्तियार है हमारे आइन के हिसाब से। आइन पढ़ें, जिसके पास नहीं है मैं उसको दे दूँगा, मुझसे ले लीजिएगा। जो तंजीम अदा का कॉन्स्टिट्यूशन है कि अगर हम कोई गलत काम करें तो इन 6 मेंबरान को इख्तियार है कि वो हमें बुलाकर बोले कि हमें ये इत्तला मिली है, आपने गलत काम किया है, ये हमें डिसमिस करके खुद जनरल बॉडी इजलास बुला सकते हैं। हम पाबंद हैं इनके, लेकिन कुछ पढ़ता नहीं है और आज आके फिर ऐसी बात करते नहीं कि ऐसे नहीं ऐसे है, क्या यही मुसल्लत रहेंगे। तो भाई जब एक हाउस मिलकर कोई फैसला कर रहा है, मैं इनको क्या घास कूड़ा समझूं, इनको बुला लूं और बोलूं कि नहीं भाई अब आप जो है 1 हफ्ते बाद फिर तशरीफ लाइएगा और ये ऐसे होगा। राय मालूम की थी, अगर अक्सरियत ये कहती, अक्सरियत अगर ये कहती कि नहीं भाई आप इलेक्शन कराएं, फिर मैं इन्हीं को कहता कि भाई अभी क्योंकि मेरी बॉडी डिजॉल्व हो गई है, अब अक्सरियत के ऊपर अब ये यहाँ का, क्योंकि मेरे सुप्रीम काउंसिल के अरकान इसका अनाउंस करेंगे, उसके बाद मैं अपनी कोशिश करूँगा कि नए लोगों को इसमें शामिल करूँ, मेरे साथ शामिल हों, शाना बाशाना चलें, मेरे साथ चलें। कोशिश करता हूँ कि मैं अपने साथ लेके चलूँ, कोई आता नहीं है। अगर आप ये मुहर्रम आएगा, आपको अंजुमनों को आपको अंदाजा है कि आपकी अंजुमन कैसे चलती हैं, किस तरीके से लोगों को जमा करते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं। फिर आप ये ऐसी बातें करते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हम मुसल्लत हो रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, यहाँ मेरे सामने सारे नहीं, मेरे लिए सब मोहतरम हैं, सब मेरे भाई हैं, मुझसे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई को छोटे हैं, मैं उनसे वैसे ही प्यार वैसी मोहब्बत रखूँगा। किसी से कभी कोई ने दुश्मनी रखी है, अल्लाह ना करे, यहाँ बारगाह में खड़ा हूँ, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, ना गलत किया। और अगर ये आपने सबने राय दी है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे बढ़कर और नई टीम के साथ मैं, क्योंकि अंजुमन गुलदस्ता अकबर और कदीमी अंजुमन है और आपके अहदे पर बैठे, मैं इनकी राय से 100% मुत्तफ़िक़ हूँ। इनसे मैं गुजारिश करूँगा, बल्कि मैं इनको कहूँगा कि अगर ये अभी हमारे सुप्रीम काउंसिल के मेंबर इसका अनाउंस करेंगे कि कैबिनेट के लिए बनाने में मैं माजिद भाई को कहूँगा, सीनियर है तो सीनियर, एक अंजुमन, पुरानी अंजुमन, अच्छा मातमी दस्ता,
उनसे गुजारिश करूँगा कि मेरी मदद करें, उन लोगों को लेके आएँ, मैं उनके साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सूरत हाल जो देखी गई है, अटेंडेंस तो सही वो बताएंगे, जिसने वो बताएंगे कितने इदारे इस वक्त मौजूद? 34 से ज़्यादा इदारे इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है। और वो चीज़ रिकॉर्ड है इसमें कि अक्सरियत ने फैसला ये किया है कि अलीम भाई को इनको कंटिन्यू, अक्सरियत ने ये राय दी, ठीक है। इसके बावजूद तो समझ लें कि ये तकरीबन फैसला दे दिया, अक्सरियत ने फैसला दिया, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई और आना चाहता है बतौर जनरल सेक्रेटरी और सदर, तो वो अपने आप को बताए कि भाई मैं सदर के लिए खड़ा होना चाहता हूँ, मैं सेक्रेटरी के लिए खड़ा होना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोबारा इतने अपने इदारों को जमा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर वक्त तो आगे होते देखा जाएगा। और यह है कि इस वक्त अगर कोई चाहता है कि अपने आप को तंजीम आज़ाद के सदर के लिए इंतखाब करना चाहता है या सेक्रेटरी के लिए, तो वो अपने आप को यहाँ जमा बता दें, अपने नाम दे दें सेक्रेटरी के और सदर के लिए। और इसमें एक सजेशन ये है कि भाई जो आप नहीं ले सकते, इनको चाहते हैंड हो जाए बस, या एक साइड पे आ जाए, तो ये कुछ वक्त है, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट हो जाए। और अगर कोई आता है सदर और सेक्रेटरी के लिए अपना नॉमिनेट आना चाहता है तो वो आ जाए, वरना तो फिर ये है कि वरना तो जो अक्सरियत भी रहा है इस वक्त में यहाँ से मैंने ये देखा तब रिकॉर्ड है, उसके आने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज की इस पूरी कार्रवाई का रिकॉर्ड मौजूद है। अलीम भाई के और शमसी भाई के हक में फैसला दिया है, मगर लेकिन जो सदर सेक्रेटरी के लिए खड़ा होना चाहता है वो खड़ा हो इसी वक्त शो ऑफ हैंड से। और ये इलेक्शन का एक मुस्तनद तरीका है, सेनेट तक में इस तरीके पर अमल किया जाता है। तो वो इस वक्त क्योंकि वक्त कम है, हालात आइंदा आने वाले बहुत ही अच्छे नहीं है। भाई 5 मिनट का वक्त देते 41 हो गए, 10:41 हमने अपनी फैसला दिया, अब आप भी एक हिसाब हमारे आगे से कोई भी आना चाह रहा है वो सामने आ जाए। हम 5 मिनट हम लेंगे अब देश में यहाँ के जानिब से मैं बायसियत जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, लेकिन उस सूरत में कि आप प्रॉपर बैलेटिंग कराएं, प्रॉपर डिसीजन जारी करें, उस सूरत है बिहार का। हमने अभी इसको सिर्फ एक वर्किंग कमेटी के तौर पे लिया है, नाली गटर खंबा और ढक्कन, ठीक है ना, इससे आगे अभी हम नहीं बढ़े, जबकि ये इदारा है आपकी लीडरशिप पैदा करने का। उसमें जो माजिद भाई ने तजवीज़ दी ना वो बहुत ही शानदार तजवीज़ है। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मैं नए साथियों को बताऊँ कि मैं सोहेल अज़ा बानी जनरल सेक्रेटरी तंजीम अज़ा और साबका वज़ार लश्कर अब्बास और मौजूदा कारकुन लश्कर अब्बास, तो इदारा खिदमत के लिए है। इसमें कि मैं मुंह पे कुछ और कहूँ और ब्लड बैंक पे अंदर पर्दे के पीछे जाके कुछ और डाल दूँ, ये हमारा कोई भी साथी मैं समझता हूँ इतना इखलाक से गिरा हुआ नहीं है। जो सामने है वो है। अच्छा, इसमें मैं तुम्हें वोट देना चाहूँ, मैं इनको वोट देना चाहूँ, नाराजगी वाली बात थोड़ी है, नाराजगी वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहले आप नॉमिनेशन जनरल सेक्रेटरी के लिए हो रहे हो सकता है और भी कोई हो, सदर के लिए भी हो, तो वो करो। उसके बाद प्यार मोहब्बत से, अच्छा ये एक बात और अर्ज कर दूँ, ये इलेक्शन जो होता है ना, ये इस इलेक्शन के कंप्लीट होने तक इलेक्शन होता है। उसके बाद फिर वो जो काबीना आती है वो मुत्तफिका होती है, जिससे वोट नहीं दिया हुआ होता है ना, सदर और सेक्रेटरी, वो उसका भी होता है। और उस सदर और सेक्रेटरी की भी जिम्मेदारी ये है कि जिसने पता भी है कि जी सोहेल ने वोट नहीं दिया, मगर काम वो सोहेल के भी करेगा, तो इदारा इसको कहते हैं। तो इस वक्त क्योंकि टाइम कम है, हालात बहुत नाजुक हैं। आज ही आपको पता है कि एक ऑर्डिनेंस तो आ गया है कि हमारे फरमान
कराने को। तो इसी तरह इस वक्त जल्दी एक मिनट बेटा, एक मेरी पूरी कर ले। तो आप जो नॉमिनी होना चाहता है, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो अपने आप को पेश करे। उसका शो ऑफ हैंड से इदारों के हवाले से बात हो जाएगी। 8 साल पहले आफ्ताब जाफरी सदर ना, उस वक्त इलेक्शन कराए गए थे अलीम भाई को जब लाए थे, आफ्ताब जाफरी के साथ थे सबके सब उस वक्त ना, क्योंकि सब सेलेक्ट करते थे हर साल बोलते हाँ भाई आफ्ताब जाफरी, हाँ भाई आफ्ताब जाफरी। माजिद भाई ऐसे होता था, हाँ बोलिए बात है सबको, ऐसे ही होता था। जब अलीम भाई को लाने के लिए हम लोग खड़े हुए तो सारे हम अभी तक अलीम भाई के साथ है, ये बात नहीं करेंगे। उस वक्त इलेक्शन कराया गया था। अच्छा एक मिनट मैं एक जुमले में जवाब दे दूं, एक जुमले में जवाब दे दूं। अगर हम ये 34 इदारों का मतलब है कि 68 बंदे, 68 बंदों के सामने भी अगर हम जुर्रत इजहार नहीं कर सकते, आज़ाद जुर्रत इजहार नहीं कर सकते, तो फिर इमाम ज़माना के सामने नहीं हो सकते। भाई आफ्ताब जाफरी से भी सबने कहा था तुम्हारे सामने, मगर वोट हमें इधर जरूरत यही है कि जो दानिश खड़ा हो गया है और भी कोई खड़ा हो, ये भी मेरा बच्चा है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अगर इस वक्त कोई सामने अलीम भाई की शर्मिंदगी में या उनकी शर्मिंदगी में जा सकता है, तो भाई वो फिर इमाम ज़माना को भी छोड़ जाएगा। अगर सबका एतमाद मेजोरिटी का अलीम भाई पर है, तो फिर इलेक्शन करवाने में कबाहत क्या है? एक क्वेश्चन मार्क है कि उसमें कबाहत क्या है? जब 80% 90% लोग चाहते हैं कि अलीम भाई आए, तो अगर 20% नहीं चाहते तो 20% भी साथ आ जाएंगे। इलेक्शन हुए, किसी का ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। मतलब ये नहीं है कि मैं शामियाने लगाऊं और ऐसा नहीं है। देखिए इदारे ना, आप इलेक्शन करवा रहे हैं ना, अब जनरल बॉडी भाई एक भाई मैं दानिश को वोट देने जा रहा हूँ, मैं आऊँ, इसमें क्या अलीम भाई नाराज हो जाएंगे? नहीं होना चाहिए। कल की बात परसों की तो बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने कहा इलेक्शन होना चाहिए, आज नहीं बोले। अकबर की एक बात है, उससे बात गलत थी, ये मैं मुनाफत है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने कहा इलेक्शन होना चाहिए, आज नहीं बोले। मैं भी बैठा हुआ देख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सारे जिन्होंने कहा इलेक्शन होना चाहिए, नहीं बोल रहे। आज भी एक इदारे से एक है, सबके सामने नहीं बोलते। नॉमिनी एक दानिश भाई आए और सदर के लिए आए पाए, एक तरफ शमसी भाई है और एक तरफ पैनल बन गया। अच्छा अब 3-4 अफराद की इदारे की पैनल है ना, तो हर इदारे से जो है वो एक आपस में एक इदारा हाँ अलीम भाई के पहले दानिश के हक में जो लोग बैलेटिंग की सूरत में मैं कैंडिडेट बैलेटिंग की सूरत में वैसे नहीं है, बैलेटिंग का भी प्रॉपर है कि कम से कम पहले वोटर लिस्ट को वापस ये वोटर लिस्ट के तो मैं कैंडिडेट स्टेज पे जो आया था ना बंदा, वही आके कहता है कि इलेक्शन करना बैलेटिंग। पहले तो आपने सबने ये कहना शुरू कर दिया ऑन रिकॉर्ड कि भाई अलीम भाई जिंदाबाद, अलीम भाई पे एतमाद है, शमसी भाई पे एतमाद है, तो ये अक्सरियत राय हो गई। ऐसा ना करें, आइंदा इस चीज़ को देखें। लेकिन जो फैसला करने वाले किस चीज़ पे फैसला लेंगे, इसी में लेंगे ना कि आपने अक्सरियत ने आपने इन पे एतमाद का इजहार किया है और वो रिकॉर्ड मौजूद है जो आपने इन पे एतमाद का इजहार किया। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए लाज़मी बात है कंटिन्यू है, इसलिए कि अक्सरियत ने राय की थी कि अलीम भाई इलेक्शन का भी मौका दिया और दानिश ने और माजिद भाई ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो कंडीशनल था। अगर ऐसा था तो आप यहाँ आके राय देते कि भाई ऐसा करें, हम लड़ना चाहते हैं, हम मौजूद हैं और इलेक्शन कराएं, उस तरीके से करें। उस वक्त ये बाद में बातें करना मेरे ख्याल में उस वक्त कहते हैं और बात फिर अक्सरियत ने ये राय दी है कि इनको कंटिन्यू करें। अक्सरियत ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तमाम अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी सदर, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरा एतमाद मेरे पे किया है। आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरह हम काम करते रहेंगे अलीम भाई के साथ मिलकर, और अगर कोई हमारे साथ काम करना चाहे मोस्ट वेलकम, हम उसको सदर दिल से थैंक यू।
एक बार फिर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पे कैबिनेट पे और शमसी भाई पे सदर और जनरल सेक्रेटरी एतमाद किया और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम सबको मिलकर जी हाँ सबको साथ मिलकर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये इस टर्नओवर को पूरा करेंगे। और जहाँ तक बातों जो मसाइल हैं और बातों से बात निकलेगी सुबह हो जाएगी और एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। फिर मैं वो बात कहता हूँ कि हाउस की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है उस हाउस की अक्सरियत राय को, नहीं तो ये होता है कैबिनेट में फैसला करके हाउस को बुला के उनसे तौसीह कराते हैं लोग। मैं तो हाउस की राय लेकर इतनी अक्सरियत के साथ बैठा हूँ, फिर भी ये कहा गया लेकिन ये 6 महीने दारा कि नहीं यार ये इलेक्शन नहीं है और कैसे इलेक्शन होते हैं। ये भी हमारी गवर्नमेंट बोर्ड ने बोला कि भाई आप खड़े हो आ जाए, वो वक्त दिया गया। मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ और इंशाल्लाह हम सब मिलकर नई कैबिनेट के साथ शमसी साहब को सेक्रेटरी होने पे सुप्रीम काउंसिल की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और सुप्रीम काउंसिल की तरफ से गुजारिश समझ लें, तजवीज़ समझ लें, हिदायत समझ लें कि वो अरकान जो खुद से काम करना चाहते हैं उनके, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है 12 या 14 ओहदे हैं तंजीम अज़म में, तो और भी बनाए जा सकते हैं। हाँ, और इसके अलावा भी बनाए जा सकते हैं, मगर ये तकरीबन 14 ओहदे तो हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। तो उनको जो लोग खुद से काम करना चाहते हैं, अपने बिल देते हैं, तो उनको लिया जाए। और तमाम तंजीमों और इदारों से भी ये गुजारिश है कि अमलन ये देखा ये जाता है कि सेक्रेटरी और सदर को ही सब काम डाल दिए जाते हैं, यानी जो खुद अहदेदार होता है तंजीम अज़म में वो भी छोटे से मसले के लिए अलीम भाई को फ़ोन करता है, भाई अगर वो जिम्मेदार है तो खुद भी कुछ काम करे, तो उन लोगों को शामिल करें और आगे बेहतर काम अंदाज से काम करें। शुक्रिया। मैं खुद उसको कैबिनेट के लिए मैंने जिम्मेदारी माजिद भाई को दी है। मैं और माजिद भाई, शमसी भाई मिलकर कैबिनेट बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर नए लोगों को शामिल करें। और मैं खुद को अपना तजर्बेकार नहीं कहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 64 साल की एज में 45 साल का मुझे कौमियात का तजर्बा है और मैं उसको एक दूसरे के आपस में शेयर करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत सही इधर टाइट होने चाहिए, इधर टाइट होने चाहिए। ये आइए आपस में यार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
एक ऐसे के अली भाई सामने से जल्दी आओ कलाक भाई। थोड़ा पीछे हुई हो गया ये जबरदस्त। ओके जी ओके। शमसी भाई मिले आ जाए साथ में आ जाए। मिले अली भाई मिले। कल या परसों हाजिर हो और शमसी भाई नहीं जाना आपका मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा मेम्बर। यहाँ देखिएगा सामने साईं, यहाँ देखिएगा। चाहिए कि मेरे पैसा क्षेत्रों में जो रास्ते के साथ काम बुला लें आ जाए। आइए एक मिनट अली भाई बराबर में हो जाओ। आइए आ जाओ हसन आ जाओ भाई। सुहेल का सुहेल बस हमारे